Okay, welcome you again in the station. In our last lecture, we have discussed types of contracts in our own language. Okay, I have tried to explain you all the types of a contract in a simple language with very simple common life examples we discussed in our last lecture. Okay, we discussed that the types of contract first of all get divided into the three parts. Number one, on the basis of validity, the types of contract get divided. Number two, on the basis of a formation, and number three, on the basis of a performance. Okay, we discussed that on the basis of a validity, the first step of a contract is a valid contract. And a very simple explanation is that if all the essential elements of contract are there, the contract is considered as a valid contract. Simple, a contract which is enforceable in the court of a law, which have all the essential elements of valid contract. जिस एग्रीमेंट में सारे essential elements of valid contract होंगे वो क्या बन जाएगा valid contract. Number two, we discussed that void agreement means which is not enforceable by law, जिसका कोई legal existence ही नहीं है. Okay, जिसकी कोई कोर्ट में enforceability नहीं है. Okay, जिसका कोई existence नहीं है. इसका agreement मतलब क्या considered है? Void agreement. Void agreement आपको याद है? I told you that it is a void agreement. Means it didn't reach up to the stage of the contract. Contract के stage पे वो पहुंचा ही नहीं है, तो वो void ab initio होता है. Okay, from the beginning वो क्या होता है बोलो? Void agreement होता है. Okay, so void agreement which is void from the beginning, from ab initio it is a void, then it is not enforceable in the court of a law. That is void agreement. Then void contract we discuss, which is enforceable, which is valid in the initial stage. Okay, जब contract बना तो valid था, but किसी वजह से उसकी enforceability cease हो गई तो वो बन गया void contract. Voidable contract मतलब क्या? जिसमें free consent वाले चार element especially नहीं है. Okay, coercion, undue influence, fraud या misrepresentation से पार्टी की consent ली गई है. हाँ, तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके ऑप्शन से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनफोर्सेबल होता है. हाँ, जो पार्टी रॉन्गफुल पार्टी है जिसने वो कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है उसको कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी but not at the option of other or others, is considered as a voidable contract. Then कौन आता है? देखो, illegal agreement हमने डिस्कस किया था. Okay, illegal agreement क्या था? याद है सबको? Which is immoral or which is opposed to public policy or which is prohibited by law is considered as a illegal agreement. I told you all illegal agreement are void, but all void agreement are not illegal. Okay, void agreement के collateral transactions जरूरी नहीं कि void होंगे, but illegal agreement के सारे collateral transactions भी illegal होंगे. And then we discuss on the basis of validity, the last type of a contract was unenforceable contract. Okay, unenforceable contract is also mean by same thing. Okay, which is not enforceable in the code, but due to some technical default. रीजन अलग है. अनएनफोर्सेबल का कोर्ट में एनफोर्स न होने का रीजन अलग है. जैसे कि रिटर्न चाहिए था, रिटर्न नहीं है. रजिस्टर्ड चाहिए था, रजिस्टर्ड नहीं है. विटनेस वाज रिक्वायर्ड, विटनेस नहीं है. सो due to the some technical default, when the contract is not enforceable in the court of a law, it become unenforceable contract. ठीक है. Then बाकी के दो टाइप बहुत easy है. Okay, on the basis of formation, when the contract is made with the use of words, either written or oral, it is called as an express contract. When the contract is made otherwise than words, that is by your conduct, that is considered as implied contract. When law create an obligation between the parties, okay, it's called as a quasi contract. In India, it is called as a relation resembling to that of contract. Then contracts which are made on the medium of internet. Okay, इंटरनेट के माध्यम से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉल करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आल्सो कॉन्ट्रैक्ट गेट डिवाइडेड इनटू द very easy way. When both the parties performed their acts, it's called as executed. When parties are yet to perform their part, it's called as executory. And executory get divided into the two type. Okay, नंबर वन यूनिलैटरल, जिसमें एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है, एक पार्टी को परफॉर्म करना बाकी है.
and bilateral means both the parties are yet to perform their performance. Got the point? So on the basis of a validity, formation, performance, the contract get divided. And in our last lecture, we discussed in our own language, these all types of a contract. Now what we are going to do is that we are going to see all the types of a contract in the module language, okay? And that module language, as you all are aware, very important for you, क्योंकि हमें एग्जाम में हमारे भाषा में लिखना नहीं है. एग्जाम में जो हमें लिखना है वो कौन सी भाषा में लिखना है, हमें एग्जाम में कंपलसरी लोकल लैंग्वेज में ही आंसर हमें एग्जाम में डालने हैं. हाँ, लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द मॉडल लैंग्वेज वी आर गोइंग टू सी. ओके, स्पेसिफिक भाषा में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं. On the first of all, as you are aware, contract get divided on the basis of a validity or enforceability, on the basis of formation, on the basis of performance. Let's see. On the basis of a validity, first very easiest kind of the contract, that is valid contract, जो already discuss कर चुके हैं. हाँ, an agreement which is binding, okay, which is enforceable, is considered as a valid contract. जो binding है, जो enforceable है कोर्ट में, वो मतलब क्या बोलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. यू शुड कीप इन माइंड टू वर्ड, ओके, व्हिच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल. जो बाइंडिंग एनफोर्सेबल है वो एग्रीमेंट क्या बनता है बोलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, means these all essential elements of valid contract are present, then the contract will become the valid contract. Okay, now example देखो, A asked B if he want to buy his bike for rupees 10 lakh. हाँ, A क्या पूछता है B को कि क्या आप मेरी बाइक 10,000 रुपए में खरीदोगे. B agrees to buy the bike. B बोलता है कि हाँ, I'm ready to take your bike for rupees 10,000. ठीक है, इसका मतलब देखो कंसिडरेशन है 10,000, बाइक है. हाँ, देन नंबर 2, A और B टू पार्टीज है. A ने B को ऑफर की है, B ने एक्सेप्टेंस दिया, मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज आल्सो देयर. सो ऑफर इज देयर, एक्सेप्टेंस इज देयर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज देयर, कंसिडरेशन इज देयर. वी इम्प्लाइडली टेक एग्जांपल वाले A और B दोनों मेजर है. हाँ, तो इसका मतलब सारे essential elements of valid contract present है. तो it is an agreement which is enforceable by law and hence ये क्या बन जाना है बोलो, it's considered as a valid contract. ठीक है. नंबर 2 देखो, void contract is the second concept which is given. हाँ, void agreement नहीं है दिया यहाँ पे, ये क्या दिया है यहाँ पे, void contract दिया है मॉडल में. फर्स्ट ऑफ ऑल void contract रिमाइंड करो, मैंने आपको बताया था कि जो शुरू में वैलिड था बट बाद में ड्यू टू सम रीजन उसकी एनफोर्सेबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, सीज हो गई, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. उसे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. कंसेप्ट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइन इन रिमेंबर सेक्शन नंबर 2J, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2J जो है वो किसको डिफाइन करता है बोलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है. ठीक है. हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं देखो, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग डेफिनेशन के अंदर जाते हैं. वहां पे सपोज I agrees to sell 15 computers to one Mr. A who reside in the Pakistan. Okay, and the delivery of the computer was to be given on the 1st of June. उसको डिलीवरी कब देनी थी, 1st of June को उसको डिलीवरी देनी थी. हाँ, now when the contract is made, that is today, the relationship between India and Pakistan is a good one. So we can make a contract, no problem is there. Can major, he's major, I'm selling computer, means lawful object is there. He's paying me 15,000 rupees per computer. So consideration is also there. Both parties are major. Intention to create legal relationship is there. Contract is possible to perform. So no problem is there. This contract is a valid contract when it is made. हाँ, नाउ एक्चुअल डिलीवरी कब देनी है बोलो मुझे, 1st of June को. क्या हो जाता है देखो, 31st of May को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया, जस्ट एग्जांपल के लिए ले लो. तो अब हम लोग 1st June को वो गुड्स उसको भेज सकते हैं क्या, मिस्टर ए को? नहीं, क्योंकि हमारा लॉ क्या बताता है, एलियन एनिमी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. याद है आप सबको, एलियन एनिमी मतलब कौन है बताओ, याद है सबको? जिस देश के साथ हमारा वॉर चल रहा है उस देश का सिटीजन हमारे लिए क्या होता है, एलियन एनिमी. एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, alien enemies are disqualified from making the contract. Okay, so we cannot make a contract with alien enemy.
तो अब हम 1 जून को वो गुड्स डिलीवर कर सकते हैं कि एलियन एनिमी को? नहीं कर सकते, क्योंकि 31 मई को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गया है। तो वो जो मिस्टर ए है हमारे लिए क्या बन गया बोलो? वो एलियन एनिमी बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाद में क्या हो गई बोलो? सीज हो गई। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब क्या बन गया बोलो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया एज पर सेक्शन नंबर 2J। ठीक है, लेट्स चेक। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ना ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा ट्विस्टी भी लगेगा, बट आपको उसको ना एग्जांपल को आइस के सामने रख के क्या करना है, उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी कब सीज होती है, या एक कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी सीज मतलब खत्म होने, कब खत्म होती है? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अब वो वैलिड था ना शुरू में, वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल कब हुआ बोलो? जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया, तब वो कोर्ट में एनफोर्सेबिलिटी उसकी क्या हो गई? सीज हो गई। हाँ, लेट्स सी, देखो वही चीज 2 बार दी है। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई, बिकम्स वॉइड, क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। कब वॉइड होता है? जब वो एनफोर्सेबिलिटी सीज होती है। 2 बार वही सेंटेंस डालना, बीच में बिकम्स वॉइड डालना है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड हो जाता है। पहले वैलिड था बट वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, बिकम्स वॉइड। कब वॉइड होगा बोलो? when it ceases to be enforceable, जब वो enforceability cease होगी। हाँ, thus void contract is a one which cannot be enforced by the court of a law। तो void contract कौन सा बोलो? जो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, वो क्या बोलो? void contract है। डेफिनेशन सबको ध्यान में आ गई क्या? देखो, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। शुरू में वैलिड था, void होगा वो कब होगा? जब उसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई। हाँ, सीज हो गई। कब सीज हो गई हमारे एग्जांपल में? जब वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया, तब वो वॉइड हुआ। उसके पहले तक वो क्या था? एग्रीमेंट वैलिड था। ठीक है, एग्जांपल देखो इन्होंने दिया हुआ, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर। एक्स एक पब्लिशर के लिए बुक लिखने के लिए एग्री होता है वहां पे। हाँ, सच अ कॉन्ट्रैक्ट हाँ इज अ वैलिड। ऑफ कोर्स नॉर्मल है, एक मेजर है, पब्लिशर है वहां पे, वो उसके लिए बुक लिख रहा है। ओके, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, ध्यान में रहा, अनफॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट में क्या हो गई? एक्स की डेथ हो गई। हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या बोलो? वो जो ऑथर है, ऑथर की डेथ हो गई ना वहां पे, तो हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गए, क्यों वॉइड हो गया बोलो? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो वॉइड हो गया। दस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट when cannot be performed because of some uncalled happening becomes the void। पहले valid contract था but due to some uncalled happening, मतलब जो हमारे हाथ में नहीं था, ऐसी कुछ घटना घटी, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। जैसे देखो इन्होंने दिए हुए एग्जांपल में, वो जो ऑथर था, ऑथर की डेथ ही हो गई, परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, अनकॉलिंग हैपनिंग, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। मैंने दिए हुए एग्जांपल में सडनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अनकॉलिंग हैपनिंग है, तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो? वॉइड हो गया वहां पे। हाँ, देखो फर्दर मोर एग्जांपल क्या दिया है उसके लिए उन्होंने। दस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, देन मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था शुरू में, बट इट कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू द अनकॉल्ड हैपनिंग, मतलब घटना ऐसी कि जो हमारे हाथ में नहीं है, हमने नहीं बुलवाई है, डेथ हो गई, हमने नहीं बुलवाया है वहां पे। हाँ, देन इंडियन पाकिस्तान का वॉर ब्रेकआउट हो गया, हमने नहीं बुलवाया है वो वॉर। हाँ, तो जो शुरू में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बट ड्यू टू सम अनकॉल्ड हैपनिंग उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बोलो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी हु इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, देन मेरा एग्जांपल में क्या हो गया? ए हाँ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, और बी कौन है बोलो? ओनर ऑफ द फैक्ट्री। हाँ, फॉर द सप्लाई ऑफ द 10 टन ऑफ द शुगर, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अकॉर्डिंगली बी को ए को 10 टन ऑफ शुगर सप्लाई करना, बी फैक्ट्री ओनर है। हाँ, बट बिफोर द सप्लाईज अफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, लेकिन शुगर सप्लाई करने के पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, हियर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो? वॉइड हो जाएगा। हाँ, अगेन पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, क्योंकि जिस फैक्ट्री से शुगर सप्लाई होने वाली है
वो फैक्ट्री जल गई है वहां पे, हाँ. It may be added by the clarification here that a contract is a void. It's not contract at all. But for the purpose of identifying, it is called as a void contract. Actually, जब void होता है तो contract बोलना अलग गलत होता है, but समझने के लिए उसको void contract बोला क्योंकि void agreement भी है ना, तो ये वाला void contract है और जो शुरू में वैलिड था बट बाद में उसकी इन्फोर्सेबिलिटी क्या हो गई बोलो, सीज हो गई है, वो क्या है वहां पे void कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया गया है. हाँ, देन नाउ नेक्स्ट वन क्या जाता है बोलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, जिसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली है कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कंसेंट लेते हुए उसके दिमाग पे क्या रखा था, गन रखा था, या मतलब कोर्शन किया था, या अंडर इन्फ्लुएंस यूज किया था मतलब मॉरल प्रेशर, या जानबूझ के फंसाया था, दैट इज इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉड किया था, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, दैट इज इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट. हाँ, तो इन दैट केस जो एग्रीव्ड पार्टी है मतलब जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है वो डिसाइड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को उसको एक्सेप्ट करना है या कॉन्ट्रैक्ट को उसको रिजेक्ट करना है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा ये एक पार्टी पे डिपेंड करता है. हाँ, और वो पार्टी कौन है बोलो, इनोसेंट पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है. कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जिसकी कंसेंट फ्री नहीं ली गई ना वो साथ में एक पार्टी भी या वन और मोर पार्टी भी हो सकते हैं ना, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है तो सारे पार्टनर्स को फंसाए तो वन और मोर पार्टी है ना, क्योंकि एक पार्टनर नहीं है वहां पे, बाप बेटे दोनों को फंसाया साथ में और उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां पे वन और मोर पार्टी है ना, तो बाप और बेटे दोनों के ऑप्शन से डिसाइड होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. ओके, सो एग्रीमेंट जब एक पार्टी के ऑप्शन से एनफोर्सेबल है और मोर पार्टी के ऑप्शन से एनफोर्सेबल है, बट हाँ जिस पार्टी ने कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है उसको बिल्कुल ऑप्शन नहीं है याद रखो. हाँ, he don't have that particular right to decide whether to enforce the contract or not. ये इनोसेंट पार्टी ही डिसाइड कर सकती है वहां पे. हाँ, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, एग्रीमेंट. हाँ, सेक्शन 2J में किसको डिफाइन किया था, ऊपर के कंसेप्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब 2I जो है वो किसको डिफाइन करता है बोलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है. Now what this particular voidable contract is all about, an agreement which is enforceable at the option of one or more party thereto, but not at the option of other or others, is called as a voidable contract. एक पार्टी को ही ऑप्शन है, इनोसेंट पार्टी को, जिसने फंसाया, डराया, धमकाया है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का. हाँ, दैट इज voidable contract है. हाँ, देखो इसका मतलब क्या आपको समझ के लेना है. This means कि voidable contract जो होता है ना, वो voidable contract में पार्टी को, कौन से वाले पार्टी को, जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है. इनोसेंट पार्टी जो ना, इनोसेंट पार्टी को दो ऑप्शन है. इनोसेंट पार्टी में डिसाइड दैट ठीक है अब फंसाया गया है, मुझे पता है, अब इसके लिए मैं कहाँ वापस जाऊं और वो प्रोडक्ट वापस दे दूं, अब हो गया सो हो गया. ओके, आई एम एक्सेप्टिंग इट. ओके, तो ही have the two option. Okay, either he can decide that to accept and complete that particular contract, and he may decide that no, क्यों injustice सहना, मुझे नहीं सहना injustice. Okay, I want that this particular product should be given back क्योंकि मुझे फंसाया गया है. हाँ, तो therefore he may take a decision that I want to cancel the contract, I want to resign the contract. हाँ, इसका मतलब जो innocent party उसका option है either to accept the contract or either to reject the contract. ये ऑप्शन किसके पास में बोलो, इनोसेंट पार्टी के पास में ये ऑप्शन है. हाँ, मतलब इनोसेंट पार्टी के ऑप्शन से डिसाइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वॉइडेबल. इसलिए मैंने आपको याद बोला था कि ऐसे याद रखना, वॉइडेबल मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट करो या उसको आप अवॉइड कर दो, विच इज एबल टू बी अवॉइडेड. ऐसे थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना कि पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो एक्सेप्ट करे चाहे तो वो रिजेक्ट करे. हाँ, अब आपको और एक लास्ट पॉइंट याद रखना, फिर हम रीड करना शुरू करते हैं. हाँ, वो लास्ट पॉइंट याद क्या रखना, देखो I'll just give you an example for that and then we will start. Okay, with the point what I want to tell you. See, suppose what happened, I'm a teacher and I'm a school teacher suppose or college teacher of yours. and मैंने क्या किया, आपकी शॉप में मैं आई हूँ, मैंने आपको बताया था. हाँ,
और मैंने आपके शॉप में आके बोला कि आई एम योर टीचर, रिमेम्बर गिव मी दिस पर्टिकुलर 90,000 एप्पल मोबाइल इन द 10,000। हाँ, एंड ऐसे मैंने जस्ट मॉरली आपको बोला, हाँ वो आपके इंटरनल के मार्क्स भी है ना, वो देने हैं, देखो देते हो क्या 90,000 का मोबाइल 10,000 में। हाँ, सो व्हाट आई एम यूजिंग दैट, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू physically, but I'm using the undue influence, that is I'm using the moral pressure। क्या यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मॉरल प्रेशर यूज कर रही हूँ आप पे। हाँ, और आपने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको वो 90,000 का मोबाइल 10,000 में देने के लिए रेडी हूँ, मैंने आपको ऐसे बोल दिया। हाँ, तो बोलो अभी आपके पास, आपने अभी तो मुझे हाँ बोल दिया, एंड नाउ आगे जाके आपके पास में क्या मेरे लिए ऑप्शंस है। हाँ, क्या ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर 1 कि ठीक है अब टीचर को दे दिया तो दे दिया, पैसे तो बाद में कमा लूंगा, जाने दो। हाँ, मतलब यू मे एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर यू मे डिसाइड व्हाई टू बियर एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। कल जाके ऐसे कितने पढ़ाई में टीचर्स आएंगे और हर कोई ऐसा अंडर इन्फ्लुएंस यूज करेगा, इनजस्टिस करेगा। नो, आई डोंट वांट टू बियर द इनजस्टिस, आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो यू हैव दैट ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। तो आपने ऑप्शन क्या चूज किया वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑप्शन चूज किया। तो वो भी आपको अलाउड है वहां पे। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते हो, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब तक कैंसिल नहीं किया जाता तब तक वो वैलिड होता है। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब तक कैंसिल नहीं किया जाता, रिसाइन नहीं किया जाता, कैंसिल को दूसरा वर्ड है रिसाइन करना, तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब तक कैंसिल नहीं किया जाता तब तक क्या होता है, वो वैलिड होता है। और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को जैसे ही आप रिसाइन करने का ऑप्शन चूज करते हो तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। वर्ड याद रखना, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक रिसाइन नहीं होता है, पार्टी जब तक ऑप्शन चूज करती है कि उसको कंप्लीट करना है वो, हाँ, तब तक वो क्या है, वैलिड है। और जैसे वो ऑप्शन नंबर 2 चूज करती है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, बोलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, let's see again, whatever contract defined in section 2I of Indian Contract Act, saying that an agreement which is enforceable at the option of a one or more party, मतलब innocent party, aggrieved party जिसकी consent freely नहीं ली गई है, but हाँ guilty party को कोई option नहीं है, okay, but not at the option of a other or others, हाँ, that's considered as a voidable contract. Okay, this is in fact means that one of the party to the agreement, हाँ, is in a position, मतलब आप जिसको मैंने मॉरल प्रेशर यूज करके हाँ बुलवाया था, हाँ, दिस इज द फैक्ट मीन्स व्हेन वन ऑफ द पार्टी टू द एग्रीमेंट इज इन अ पोजीशन और इज लीगली एंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग पार्ट, then the agreement is treated and become voidable। one of the party को only लॉ ने अलाउ किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो अवॉइड कर सकता है, that is considered as a voidable। Okay, such a right may arise from the fact that the contract may have been brought by coercion, under influence, fraud and misrepresentation। आपको बताया था, हाँ, इनफ मिस्टेक लेना नहीं है, याद रखो 4, हाँ, फ्री कंसेंट वाले मिस्टेक में ना वर्डेबल नहीं होता, मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, इसलिए मिस्टेक नहीं लेना है। 4 things when contract will become voidable: if the consent of the party is caused by the coercion, under influence, fraud or misrepresentation, then contract क्या हो जाता है, बोलो, voidable contract हो जाता है। हाँ, and hence the other party has the right to treat it as a voidable। तो other party को option है कि उसको वो treat कर सकता है as a voidable। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, देखो, हाँ, X promises to sell his scooter to the Y for ₹1 lakh। X ने Y को प्रॉमिस किया कि उसकी स्कूटर क्या करेगा, 1 लाख रुपए में बेचेगा। हाँ, बट X की जो कंसेंट ली गई है ना, वो X की कंसेंट कैसे ली गई है, बोलो, वहां पे putting a gun on the head। हाँ, however the consent of the X has been taken by Y at the gun point। X की कंसेंट कैसे ली गई है, बोलो, Y ने कैसे ली है, इनफैक्ट वो उसके दिमाग पे गन रख के। एज यू आर अवेयर दिस इज कोर्शन, क्या है, बोलो, ये कोर्शन है। तो एक्स इस एग्जांपल में इनोसेंट पार्टी है, डर के हाँ बोला उसने। एक्स इस एग्जांपल में एग्रीव्ड पार्टी, जिसपे अन्याय हुआ, एग्रीव्ड पार्टी मतलब, हाँ, तो एक्स इज एग्रीव्ड पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन से वर्डेबल होगा, ऑफ कोर्स एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन से। इसका मतलब किसके ऑप्शन से वर्डेबल होगा, एक्स के। ओके, नाउ एक्स इज एन एग्रीव्ड पार्टी and the contract is avoidable at the option of a X, but Y guilty party है ना, Y ने धमकाया है, तो लॉ Y को कोई ऑप्शन नहीं देता है
Y didn't have any kind of the remedy. Okay, so it's not avoidable at the option of a Y. It means if X accept the contract, contract valid. और अगर X ने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना डिसाइड किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड. इसीलिए मैंने बोला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक वैलिड है, और जैसे वो कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा वॉइड. और वाई को कोई ऑप्शन है क्या? नहीं. हमारे लॉ में एक लैटिन फ्रेज होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्लेंटिफ मस्ट कम विद अ क्लीन हैंड. अगर आप कोर्ट में न्याय मांगने आ रहे हो तो पहले आपका हाथ क्लीन चाहिए. अब वाई ने डराया है और वाई बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे अब कैंसिल करना है. वाई को कोई ऑप्शन है? नो. Why didn't have any kind of the option? Because Y is a guilty party. Y ने डराया धमकाया. Y innocent नहीं है, वहां पे clean hand नहीं है Y के, तो Y didn't have any remedy. इसलिए ऐसे बोला है, but not at the option of other or others. Okay. At this juncture, it would be desirable to see the distinction between void contract and voidable contract. Simple है. पहले meaning दिया है. Void contract क्या है देखो वहां पे meaning wise. A contract ceases to be enforceable by law. कब void होगा? Becomes void when it ceases to be enforceable. हाँ, शुरू में valid था, परफॉर्म करना किसी वजह से इम्पॉसिबल हो गया तो हो गया void contract. लेकिन voidable contract क्या है बोलो? जब तक अवॉइड नहीं किया जाता तब तक वैलिड है, अवॉइड करने के बाद void होगा. तो एक पार्टी के ऑप्शन से एनफोर्सेबल है, दूसरे पार्टी को कोई ऑप्शन नहीं है. एक पार्टी मतलब इनोसेंट. हाँ, एन एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती वहां पे ऑप्शन चूज कर सकती है. वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखो. हाँ, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड एज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों का मीनिंग. हाँ, सो डिस्टिंग्विश में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? दोनों का मीनिंग. अब दोनों की एनफोर्सेबिलिटी. एक बार कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया तो एनफोर्स होगा क्या? नहीं. तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल है क्या? नहीं. हाँ, void contract cannot be enforceable at all. लेकिन voidable contract aggrieved पार्टी को ऑप्शन है एनफोर्स करना या नहीं करना डिसाइड करने के लिए. हाँ, it is enforceable only at the option of a aggrieved party and not at the option of the other party. हाँ, contract void क्यों होता है? रीजन कॉज दोनों का. क्यों वर्ड होता है, क्यों वर्डेबल होता है? void contract का रीजन याद है, अब ये भी बताया था मैंने, क्योंकि सडनली कोई लॉ चेंज हो गया या सडनली कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट पहले परफॉर्म करना पॉसिबल था वही कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के रीजन फ्री कंसेंट में से कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन यूज किया है. हाँ, कॉज देखो. अवॉइड contract become void due to the change in the law, due to the change in the circumstances beyond the contemplation of a party. Voidable contract. Voidable contract में क्या हो जाएगा? Contract become voidable. Contract become voidable contract if the consent of the party was not free. हाँ, और उसमें कौन से पॉइंट्स आने? Coercion, under influence, fraud और misrepresentation. हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या जगह देखो, ये है ना एनफोर्सेबिलिटी और परफॉर्मेंस अराउंड सेम पॉइंट है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है क्या? वो वॉइड ही होगा ना, तो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हुई तो परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है ना. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. लेकिन उधर देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीव्ड पार्टी का ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर लिया तो परफॉर्म हो जाएगा. हाँ, लेकिन उसने रिजेक्ट किया तो फिर परफॉर्म नहीं होगा. राइट. If the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of contract. मतलब ना आपको इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना होता है. अगर आपने विद इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया तो आपको फिर वो परफॉर्म करना पड़ेगा. हाँ, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ राइट्स मिलेंगे क्या? बताओ. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है ना, तो परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई लीगल रेमेडी होगी क्या? नो लीगल रेमेडी. अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ब्रोकआउट हो गया तो मेरी आपकी कोई गलती है क्या वहां पे? नहीं. तो देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई राइट्स देगा क्या पार्टी को? नहीं. void contract does not grant any legal remedy to the party. हाँ, but voidable contract option है ना पार्टी को either to accept or reject. The party whose consent was not free has the right to resign the contract within reasonable time. But if so rescinded, it become the void contract. And if it is not rescinded, it become the valid contract. मैंने बताया आपको voidable contract अगर कैंसिल किया पार्टी ने, ऑप्शन चूज किया रिसाइन करने का, तो वो void हो जाएगा. और अगर पार्टी ने डिसाइड किया कि ठीक है परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर वो voidable contract क्या हो जाएगा? वो वैलिड हो जाएगा. सो voidable contract पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड है कि राइट्स होंगे या नहीं. ओके, सो अप टू पॉइंट वी डिस्कस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void contract